یاد رکھیں کرپشن کبھی معاشرے سے ختم نہیں ہوتی ہے. ریاست ہر گھر میں ہر وقت نہیں ہو سکتی ہے, تو کرپشن کرنے والے لوگ ضرور رہیں گے, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ کم کرتے جاتے ہیں تو معاملات جو ہے وہ آسان ہو جائیں. لیکن بھارت 38 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 85ویں نمبر پہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے, کہ میں آج تک یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے دکھایا بھی جاتا ہے کہ وہ بڑا کرپٹ مال ہے, بڑی کرپشن ہو رہی ہے, لیکن مطلب وہاں پہ اس طرح کے 38 پوائنٹ لے لینا کافی بڑی بات ہے. یہ جو پاکستان کا میڈیا کی جو ہے نا خاص محبت ہے انڈیا کے ساتھ, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. انڈیا کے اندر محبت کی بات نہیں ہے, جو ریئل فیکٹس ہیں اور ریئل فیکٹس کو ماننا چاہیے. مطلب اب یہ تو بات ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 38 پوائنٹس پہ اس کو مطلب دیکھیں وہ پرفارمنس کا بات ہے, پاکستان کا پرفارمنس ہے تو مان لینا پھر. اب مجھے نہیں پتا, کچھ نہ کچھ مارکرز ہوں گے, پرسپشن کا انڈیکس ہے, ہو سکتا ہے ان کی شاید وہ آبادی کے لحاظ سے بھی, ان کی کافی زیادہ آبادی ہے تو اس لحاظ سے وہ کالرز کو لے لیتے. ایک سٹیٹمنٹ گزری تھی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس کا صدر جو ہے وہ ایک باورچی کا بیٹا ہے اور ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم ہے. نہیں, پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسے ملکوں سے ہمارا تعلق ہے جن میں سے ایک میں وہ صدر ہے جو جس کا باپ باورچی تھا اور دوسرے میں وہ پرائم منسٹر ہے جس کا. ٹھیک ہے, میں نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک انڈیا کا جو دورہ تھا پریزیڈنٹ اوباما کا, اس کا یہ نچوڑ ہے. ہمارے ہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. انہوں نے جو موروثیت کی ماری ہوئی پارٹی تھی نا ان کی, نتھنگ اگینسٹ دم obviously, وہ انہوں نے نکر لگا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چائے, دیکھو اس بندے پہ کرپشن کا الزام نہیں, اس پہ قتل و غارت کا الزام ہوگا, کرپٹ نہیں ہے, جو اپنے ملک کے لیے بہترین آدمی. ہماری بدنصیبی دیکھو, ہمارے کہتے ہیں نا کمزاد فلانا دستکار, ہمارے یہاں بھی دستکار آئے نا, ان کے پاس پیسہ تو ابھی کل کی بات ہے, اس سے پہلے دستکار لوگ تھے, محنت کش لوگ تھے, مزدور لوگ تھے. لیکن یہ بھی آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی اس درجے کا یہاں سے اٹھ کے اگر اوپر آئے, تانا تو نہیں ہے, باورچی ہونا یا چائے فروش ہونا یہ تو کوئی تانا نہیں ہے, پرووائڈڈ آپ کے اندر کوئی کلاس ہو, آپ کے اندر کوئی انسانیت ہو. نہ اوباما پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے, نہ مودی صاحب پہ ہے. وہ کیا فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت. یہ بدنصیبی ہے. سلمان صاحب, آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا اس پورے معاملے کو. ہمسایہ ممالک میں دیکھیں, ترقی یافتہ ممالک میں بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ آر اوز کسے ہونا چاہیے, یا یہ ایک پورا ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور پھر اس کے لیے قانون بدلنا پڑے گا؟ دیکھیں, اگر قانون کے ذریعے تعین کر دیا جائے کہ آر او یہ ہوں گے تو پھر تو ایک بات واضح ہو جائے گی. اب انڈیا میں آر او جو ہے وہ عام طور پہ ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوتے ہیں, بیوروکریٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں آر او. اب ہمارے ہاں تو ایک یہ تاثر ہے کہ سول سرونٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاستدانوں کے کسی نہ کسی گروہ کے وفادار رہتے ہیں. اپنی سروس کے دوران انہوں نے وفاداریاں قائم کر لی ہوتی ہیں اور وہ وفاداریاں ان کی چلتی ہیں. لہٰذا یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو آر او ہونا چاہیے جیسا کہ انڈیا میں ہے, یا جو دیگر ممالک ہیں, یورپ کے ممالک ہیں, وہاں تو خیر یہ دھاندلی کا ایشو ہوتا ہی نہیں. وہاں تو یہ بات تقریباً گمان سے باہر ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو, غلط ووٹ ڈالے جائیں تو وہاں کوئی بھی آر او ہو سکتا ہے. علاقے کے کسی معتبر شخص کو کہہ دیا جاتا ہے یا میئر آر او ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ دھاندلی ان الیکشنوں میں نہیں ہوتی. تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ, یہاں بالکل غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا. اور انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ دھاندلی کی بڑی شکایت نہیں ہوئی بہت عرصے سے. اب کیا وجہ ہے کہ وہاں دھاندلی کی شکایت نہیں ہوئی, ہمیں بہت غور سے انڈین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ کارزائی صاحب نے جب ووکل ہوئے ہیں تو ٹورڈز دی اینڈ آف ہز ٹرم تو سڈنلی ان کو اپنا پشتون اوریجن بھی یاد آ گیا, سڈنلی ان کو زیادتیاں بھی ساری یاد آ گئی. وڈ یو سے کہ وہ صرف ایک مطلب سیونگ فیس تھا آخر میں, یا واقعی وہ اتنی زیادہ رنجشیں رکھتے تھے؟ دیکھیے, میں افغان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں نا, اس کو ایک اس پیرائے میں عام طور پہ بیان کرتا ہوں کہ نکاح تو افغانستان اور پاکستان کا آپس میں ہے, لیکن افغانستان کا عشق بھارت کے ساتھ ہے.
अच्छा, निकाह पाकिस्तान के साथ है लेकिन इश्क भारत के साथ तो है। उस शक व शुबहात की जो मैंने बात की, उसकी वजह मैं ये बता रहा हूं आपसे, अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से भारत का जो कल्चरल एक रवैया है ना, वो लव रहा है आपका मतलब है। वो भारत के साथ एक उनका एक वो सेक्युलर किस्म की सोच, इस किस्म की, ये तो तालिबान के जमाने में आके लेकिन सवाल पाकिस्तान की जगह दिखाई देता है। जो मैं जिस तासुर की बात करी, मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरा ख्याल है ये तासुर जाएगा नहीं। आप देखिए जो सोसाइटी है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, अशरफ गनी साहब इज मेकिंग ऑल द राइट चॉइसेस। अफगानिस्तान की जो अवाम की जो सोच है वो पिछले 12-14 साल में इस तरीके से मैनिपुलेट और मॉडिफाई हुई है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादातर नेगेटिव परसेप्शंस हैं। निकाह तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में है, लेकिन अफगानिस्तान का इश्क भारत के साथ है। हमसाया मुल्क भारत खित्ते में असलहे की दौड़ और अदम तवाजुन की जानिब बढ़ा तो पाकिस्तान ने इस दौड़ में शामिल होने के बजाय मौसर दिफा के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी के हुसूल को तरजीह देने का फैसला किया। तफसील इस रिपोर्ट में। दिफाई तजज़ियाकारों का मानना है कि शाहीन 3 के कामयाब तजुर्बे के बाद पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। ताहम तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत पर जोर दिया है। अब हिंदुस्तान आगे बढ़े। कैमरामैन शबीर अहमद और अफजाल अहमद के साथ फरहद जावेद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे जैसे फॉरेन ऑफिस को डिफेंड किया, उसी तरह मेरे ख्याल में कोई एक सियासी जमात को इस वक्त हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस वक्त सियासी बसीरत की, मैच्योरिटी की तमाम जमातों को ज़रूरत है और इसी दानिशमंदी के साथ इन मसलों का हल चाहिए, क्योंकि बहरहाल मिक्स मैसेजेस देने के तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं। अवान साहब, आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात और उसमें किस हद तक हमारे मामलात हमारी गिरफ्त में हैं। अभी हाल ही में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अरसे पहले, इस धरने शुरू होने से कई अरसा पहले, उन्होंने एक एग्जीबिशन सोचा था कि वो दिल्ली में लेके जाएंगे, सक्सेसफुली लेके भी गए, लेकिन कंप्लीट डिस्कनेक्ट आपको नहीं लगता है कि एक तरफ हमारे मुल्क में तवील तरीन धरना हो रहा है, कुदरती आफत यानी सैलाब और बारिशों का हमें सामना है, और मैसेज हम आलीशान पाकिस्तान का लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। असल मसला ये है कि सिदरा हमेशा भारत का, और हाँ, भारत हमारा कॉम्पिटिटर रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। अब मलिक साहब, ये तो आप 90s, अर्ली 90s की बात करें, 94 में उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लेकिन वो 1953 में अपने लैंड रिफॉर्म्स कर चुके थे, जो आज तक हम नहीं, हम तो बेसिक से शुरू करते हैं ना। प्रॉब्लम ही यही है। फिल्म बहुत ज्यादा एक इंटेंसिव डिमांडिंग टास्क है, और फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, और बहुत से अनासर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में मसला ये रहा है, मुझे हमेशा से इस बात का बड़ा अफसोस रहता है कि हमने खुद ही अपनी जो फिल्म है, ये फिल्म मेकिंग है, उसको हमने खुद प्रमोट नहीं किया, लेकिन उसको हमने सर्टनली डिमीन और डिग्रेड बहुत किया है। आप अगर फॉर एग्जांपल फिल्म स्टार से ले लें, और ये मैं हमेशा इस बात का मुझे अफसोस भी रहा है और मैं बात करती रही हूँ कि बैरून मुल्क अगर आप चले जाएं, पड़ोसी ममालिक चले जाएं, उधर जब हम बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, फिल्म हीरोइंस देखते हैं, वो चाहे जो कुछ भी करें वो स्टार है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी तो ये है कि साउथ इंडिया में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो रजनीकांत अगर उसका टायर पंक्चर हो जाए ना, बाय द टाइम उसका टायर बदला जाए, 2 लाख बंदा उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। नहीं, वो वहां तो उनको देवताओं की तरह सेलिब्रिटी वर्शिप होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको, मेरा ख्याल है हमारा, लेकिन हम मौजूद हमारा रखा हुआ है कि सियासत का, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, कि चूंकि फिल्म मेकिंग में या फिल्म्स में जो लोग अटैच थे, उनको हमने इतना डिमीन किया, इतना डिग्रेड किया कि लोग, सीरियस लोग जो कि फिल्म को समझते भी हैं और फिल्म के थ्रू जो मैसेज आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मीडियम है, सिल्वर स्क्रीन का तो ग्लैमर ही कुछ और है। आप जब सिनेमा में बैठे होते हैं तो फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचें आप ड्रामे में कितना इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अब तो सराउंड साउंड के साथ और जो सिनेमा इफेक्ट्स हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आपके साथ कौन बैठा हुआ है। आपको लगता है बस आप शाहरुख खान ही को देख रहे हैं, अब शाहरुख खान ही है साथ, बाजू में जो बैठा होता है शाहरुख खान में देख रहे हैं, लेकिन साथ वाले, ये बात जो है मेरा कहना है खवातीन बाजू में जो बैठा होता है उसको भूल जाती है 3 घंटे के लिए। फिल्म स्टार्स हमने अपने उतने ग्लैमराइज नहीं किए, उनको उतना हमने नहीं मतलब परस्तार हम वहाँ जिस तरह बॉलीवुड के या हॉलीवुड के रहे हैं। क्रिकेट की जहां बात की जाती है तो एक और शोबे की मैं बात करूंगी जो पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है। शाज़ो नादिर किसी की उसकी तरफ तवज्जो डालती है, लेकिन आज तवज्जो दिलाने के लिए बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि कल जुमे के रोज एक भारतीय मूवी देवदास पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश हुए। आप सब जानते हैं कि देवदास कितनी पुरानी मूवी है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत होगी कि जिन्होंने ये मूवी देख ली हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज, भारतीय मूवीज पाकिस्तानी सिनेमाओं में चलाना और पाकिस्तान की जो पुरानी
क्लासिक मूवीज हैं उन्हें डब्बों में बंद करके रखना, ये कहाँ का इंसाफ है। माना कि भारत के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बात है, ताल्लुकात आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन क्या सकाफत पर ज़रब लगने की कॉस्ट पर? और ठीक है, अब भारत की फिल्में नुमाइश के लिए पेश कर दीजिए, लेकिन अपनी फिल्मों की तरफ भी तवज्जो दीजिए। हमारे पास ऐसी क्लासिक मूवीज हैं जिनमें आईना, सहेली, बाजी, दामन, फूल और कांटे, ये वो चंद फिल्में हैं जो कि मेरे जहन में इस वक्त क्विकली नाम आ रहे हैं। गालिब, जो कि मैडम नूरजहां की आखिरी फिल्म थी, आजकल की जनरेशन को शायद उसके बारे में मालूम हो। मलंगी, नाइला, वारिस शाह, ऐसी क्लासिक, ऐसी शानदार फिल्में हमारी माजी का हिस्सा हैं कि जो डब्बों में बंद पड़ी हैं और हमारी नई नस्ल उनके बारे में जानती ही नहीं, और वो भारतीय सकाफत से मरूब है, भारतीय कल्चर से मरूब है। भारत के आज के सुपरस्टार्स, अगरचे वो पाकिस्तानी हैं, तमाम खान हैं, अच्छी बात है, उनके नाम तो अजबर हैं, लेकिन हमारे माजी के जो सुपरस्टार्स, बल्कि सुपर डुपर स्टार्स थे, उनके नाम शायद ही आज की नौजवान नस्ल को याद हो। तो पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में अगर कबूल हैं तो फिर पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों को भी फजूल नहीं करना चाहिए था। पा रहे हैं। जावेद साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। कालाबाग डैम की हम पहले बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा डैम्स इंडिया ने बना लिए। ये भी बताया गया था कि मनमोहन सिंह साहब ने कारगिल, सियाचिन और लेह के अंदर जाकर तमाम सिचुएशन को एनालाइज भी किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे अपने जमाने में। वहां के प्राइम मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इसको जरा देखिएगा कि क्या हमारे यहाँ के लोग, हमारे लीडरान, हमारे लोगों के मुफाद के बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस तरह सैयद जमात अली शाह साहब कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर खराबी है, कोई ना कोई काली भेड़ है, ब्लैक शीप है जिसको हमें ढूंढने की जरूरत है। क्या इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है कि पाकिस्तानी भी जो है वो इंडिया की साइड ले रहे हैं? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक तो वापडा को देखें कि वाटर एंड पावर, तो मैंने तो पहले इरिगेशन की बात की थी, दूसरा जुज़ इसका एनर्जी है जी। और चीपेस्ट एनर्जी का सोर्स जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होता है और आज तक भी है। पाकिस्तान में अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे शुएब साहब ने बहुत एम्पली बताया हमें। इशू क्या है कि अगर एक कालाबाग डैम नहीं बनता, उस पर कंसेंसस नहीं होता, और कंसेंसस ना होने की वजह मैं बिल्कुल ये क्लियरली कहना चाहता हूं, ये अंदर की फीलिंग नहीं है, ये बाहर के प्रेशर्स हैं। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए एग्रीकल्चर और एनर्जी दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। सो हमें तो रोका जा रहा है और हम खुद रुक रहे हैं अंदर से, हमें डिक्टेट्स बाहर से आती है। बताइएगा, एक सवाल है आपसे, ये तमाम प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों काम करते हैं, ये तमाम प्रेशर्स इंडिया के ऊपर क्यों काम नहीं करते, या फिर हम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रेशर को फील कर लेते हैं? मसला क्या है? कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने सरहदों पर दरअंदाजी के मामले पर भारत को क्लीन चिट दे दी, और इस पर मशीर खारजा सरताज अजीज खामोश रहे। अगर इस तरह गुलाम बनकर रहना है तो बेहतर है पाकिस्तान को नीलाम कर दिया जाए।